Good morning, students. Welcome you on today's maths class. This is your maths sir, Rafson sir. देखिए आज हम लोग करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। नया एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग ने नॉर्मली बहुत सारे इक्वेशन पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। तो ये आज नया एक टॉपिक के साथ हम परिचित होने जा रहे हैं, जो है डिफरेंशियल इक्वेशन। So let us start the class. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? नॉर्मली वी नो व्हाट इज इक्वेशंस. सपोज वी हैव x square plus 5 equal to 0. This is an equation. Okay, so we all know about the equation, but what is differential equation? Differential equation क्या है? Differential equation is an equation involving independent variable, dependent variable and derivative or derivatives of independent variable with respect to the independent variable is called an differential equation. क्या है? देखिए, सपोज कोई भी एक इक्वेशन आप लोगों के पास है, dy dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए y क्या है आप लोगों का? डिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है? x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। सो देखिए यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है with the derivative of dependent variable with respect to independent variable है. So this is a differential equation. So differential equation is the equation in which we get dependent variable, independent variable, derivatives of dependent variable with respect to independent variable. So this type of equation are called differential equation. If we take another example, d2y dx2 plus x dy dx plus y is equal to sin x. So this is also a differential equation. Now we'll discuss about the ordinary differential equation. Ordinary differential equation क्या है? A differential equation involving derivative or derivatives of the dependent variable with respect to only one independent variable. अगर कोई भी differential equation में independent variable एक ही होता है, this type of differential equation is called ordinary differential equation. Okay, जैसा सपोज कीजिए आप लोग पिछले जो दो एग्जाम्पल लिखा था, दिस बोथ आर ordinary differential equation. 2y is equal to 10x. This is equal to 10x. So यहाँ पे देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे y and independent variable is x. So independent variable, only one independent variable, only one independent variable. So हमेशा याद रख लेना, a differential equation involving derivative of the dependent variable with respect to only one independent variable.
ये जो y का डेरिवेटिव है ये हमेशा किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रेस्पेक्ट में ही होगा, देन दिस टाइप ऑफ differential equation is called ordinary differential equation. देखो, suppose we take another example, d2y by dx dt is equal to 0. तो for this यहाँ पे देखो d2y dx with respect to x is an independent variable as well as t is an independent variable. Here x and t both are independent variable. Both are independent variables. Hence, this is not an ordinary differential equation. Now, we'll discuss order of a differential equation. Differential equation, what is the order of a differential equation? Suppose you are a differential equation dy dx minus sin x equal to 0. If we consider this differential equation, then यहाँ पे देखो डेरिवेटिव्स जो है ना, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है? फॉर फर्स्ट केस ओनली dy dx. तो dy dx है ऑर्डर क्या, कौन सा ऑर्डर का डेरिवेटिव है? ये फर्स्ट ऑर्डर का d1 y dx1. दिस इज ऑफ ऑर्डर 1, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. सो ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम is 1. If we consider the equation 2, देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे d3 डेरिवेटिव कौन सा, दो डेरिवेटिव मिल रहा है. एक है d3y dx3 और एक मिल रहा है हम लोगों को d2y dx2. सो यहाँ पे देखो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा, यहाँ पे इसका ऑर्डर ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. हेंस द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, order of the differential equation 2, order of the differential equation 2 is 3. Okay, so what is the order? The order of the differential equation. So if we discuss the definition, तो definition क्या बोल रहा है? देखो, the order of the highest order derivatives of the dependent variable with respect to the independent variable involved in a differential equation is called the order of the differential equation. मीन्स क्या है? कोई भी differential equation के साथ जितना भी हम लोगों का डेरिवेटिव्स मिलता है डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होते हैं उसको ही हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर. Now we'll discuss about the degree of a differential equation. Degree of a differential equation. कोई भी एक differential equation का degree क्या होते हैं? Suppose we have taken the differential equation d3y dx3 plus x d3y dx3 plus 3y dy dx equal to 0. तो क्लियरली देखो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, दिस इज ऑल्सो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो हाईएस्ट ऑर्डर इज 3. सो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3. आप देखो ये थर्ड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसका हाईएस्ट पावर क्या है? तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर d3y dx3 का जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, 1 है. तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर 2. सो डिग्री हो जाएगा आप लोगों का, डिग्री इज इक्वल टू 2 फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. अगेन आई एम सेइंग, जो हाईएस्ट पावर है, ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसका पावर क्या है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, वही हो जाएगा आप लोगों का डिग्री. तो देखो, इफ वी डिस्कस द डेफिनेशन, द हाईएस्ट पावर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स ऑफ द हाईएस्ट
order derivative involved in a differential equation when it is written as a polynomial in derivatives. देखो ये हमेशा याद रखना है, पोलिनोमियल्स में लिखना है, ऐसा नहीं रूट से लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रूट ओवर ऑफ 1 प्लस dy dx इक्वल टू 1, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पोलिनोमियल एज ए पोलिनोमियल एक्सप्रेस करना चाहिए। पोलिनोमियल क्या है? Polynomial is a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus dot dot plus an। ये जो n x का जितना भी पावर है, all are positive integers and other a1 a2 these are the रियल नंबर्स। तो यहाँ पे dy dx जो डेरिवेटिव है उसका पोलिनोमियल में होना चाहिए, उसका पावर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। ये नेगेटिव इंटीजर या और दूसरा कुछ आएगा तो हम लोगों को दिक्कत हो सकता है, वी कैन नॉट से द डिग्री। ओके, सो ये याद रख लेना है कि इज रिटन एज ए पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का पोलिनोमियल पे एक्सप्रेस हुआ है इज कॉल्ड द डिग्री। दैट मीन्स अगर कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेटिव पोलिनोमियल में लिखा हुआ है एंड दैट मीन्स हर डेरिवेटिव का पावर पॉजिटिव इंटीजर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री का, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो डिग्री है मीन्स पावर है, उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए सम नोट्स। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स, ये आप लोगों को हमेशा हमेशा याद रखना है। द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड, ऑर्डर एंड डिग्री अगर डिफाइंड होता है ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑर्डर एंड डिग्री कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑलवेज ऑर्डर एंड डिग्री अगर डिफाइन होता है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगा। ओके, नंबर टू बोला है इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट ए पोलिनोमियल इक्वेशन, if the given differential equation is not a polynomial equation in its derivative then its degree is not defined। अगर कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेटिव पोलिनोमियल में एक्सप्रेस नहीं है तो इसका डिग्री हम बोल नहीं सकते। जैसा एज फॉर एग्जांपल dy dx प्लस sin dy dx इक्वल टू साइन ऑफ, देखो साइन x इंटू dy dx ना, साइन of dy dx, here dy dx as the degree of the sin x, ठीक है। डिग्री मीन्स sin x का काम कर रहा है, sin dy dx इक्वल टू 0। दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स, ये डेरिवेटिव्स में पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, बिकॉज इफ वी एक्सप्रेस sin x always we get, देखो sin x का अगर sin x को पोलिनोमियल में एक्सप्रेस करते हैं तो हम लोगों को मिलता है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स टू द पावर, सॉरी ये ऑल्टरनेट एक प्लस एक माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। ओके, तो अब देखिए साइन ऑफ dy dx क्या हो जाएगा आप लोगों का। साइन ऑफ dy dx, तो साइन dy dx if we express in this polynomial form then we get dy dx minus dy dx whole cube by factorial 3 plus dy dx whole to the power 5 by factorial 5 minus dot dot, ठीक है ना।
तो देखो ये dy dx का पावर सिर्फ बढ़ते जा रहा है अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये बढ़ते जा रहा है, तो वी कैन नॉट से dy dx का हाईएस्ट पावर क्या है. सो फॉर दिस केस we cannot say what is the degree of this डिफरेंशियल इक्वेशन. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो हम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही डेरिवेटिव है dy dx, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 बट डिग्री अनडिफाइंड. ओके, बट डिग्री अनडिफाइंड. तो जब भी आप लोगों को कोई भी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन मिले जिसमें आप लोग ये पोलिनोमियल पे एक्सप्रेस नहीं है, तो यू कैन नॉट से द डिग्री, you can say easily order. So if we take another example, suppose d2y dx2 plus e to the power dy dx equal to 0. For this also you see here there is d2y dx2 or you have e to the power dy dx. For this case we can easily say the degree and order, because यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ही पावर देखना है. तो यहाँ पे e to the ये dy dx है, इसीलिए we can say the order is 2 and degree is 2, क्योंकि इसके साथ कोई डिग्री का लेना देना नहीं है. If this is also d2y dx2 and then देखो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, this is also हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, but this is not in the polynomial form. इसको अगर पोलिनोमियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये e to the power x का पोलिनोमियल फॉर्म है 1 plus x square by factorial 2 plus x cube by factorial 3 x cube by factorial 3, ठीक है, प्लस डॉट डॉट. तो ये देखो d2y dx2 का पावर अप टू इंफिनिटी, क्या हाईएस्ट पावर क्या है वी कैन नॉट से. सो इफ दिस इज d2y dx2 plus e to the power d2y dx2 is equal to 0, then we can say its order is 2 but degree undefined. ओके, और अगर ये इसमें और एक टर्म ऐड हो जाता है d3y dx3 plus d2y dx2 plus e to the power d2y dx2 is equal to 0, then इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा. ऑर्डर क्या है 3. अब हाईएस्ट ऑर्डर का पावर देखना है, तो ये तो हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है d2y dx2, तो इसीलिए इसका डिग्री भी आप लोगों का डिफाइंड हो जाएगा, डिग्री भी 1 हो जाएगा, ऑर्डर 3. ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन नंबर 1 के क्या पूछा है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस. देखो यहाँ पे dy dx माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, सो इजीली ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज हियर, सो ऑर्डर इज 1, डिग्री तो फर्स्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे एक ही डेरिवेटिव है तो हाईएस्ट पावर इज 1, सो ऑर्डर 1 है, डिग्री 1 है फॉर फर्स्ट केस. y ट्रिपल डैश मीन्स क्या है, ये हमेशा याद रखना है. y ट्रिपल डैश मीन्स d3y dx3. y ट्रिपल डैश, y डबल डैश मीन्स क्या है, y डबल डैश मीन्स d2y dx2. y dash means dy dx. ओके, ऑल्सो ये y ट्रिपल डैश नहीं देके ये y3 भी दे सकते हैं, y3 भी सेम है, y3 मीन्स d3y dx3, y2 मीन्स d2y dx2 and y1 मीन्स dy dx. So y3 y triple dash, y2 y double dash, y1 y dash, these all are same. So ये देखो in question number 3, this is question number 3, y triple dash plus y square plus e to the power y dash
is equal to 0. So this implies if you write this in the form d3y dx3 plus y square plus e to the power dy dx इक्वल टू 0। तो आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डर इज 3। अब देखो हाईएस्ट ऑर्डर के साथ लेना देना है, यहाँ पे e टू द पावर dy dx है, लेकिन हमारा हाईएस्ट ऑर्डर क्या है d3, ठीक है, थर्ड ऑर्डर, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर। तो इसके लिए हम इसका डिग्री भी बोल सकते हैं। if this is in first order then this will make problem, or if this is in third order 3, then this will make problem. So highest order d3y dx3 third order derivative। so third order derivative का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे देखो d3y dx3, तो इसका हाईएस्ट पावर आप लोगों के पास है कुछ नहीं 1। सो आप डिग्री ऑफ दिस इज डिग्री of the differential equation is 1. Next देखो question number 3, we try to solve question number 3। question number 3 क्या बोल रहा है, y is equal to x dy dx plus root over of 1 plus dy dx whole square। तो यहाँ पे देखो दिस इज नॉट इन द पोलिनोमियल फॉर्म, यहाँ पे dy dx है, ठीक है, नॉट इन द पोलिनोमियल फॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्रेस दिस इन पोलिनोमियल फॉर्म। सो दिस इंप्लाइज आप ये जो x माइनस एक्स dy dx को इस साइड में ले आइए। सो y माइनस एक्स dy dx, okay, is equal to root over of 1 plus dy dx whole square। अब देखो we have to remove the square, okay, so squaring both sides, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो ये y माइनस एक्स डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो आप देखो a माइनस बी होल स्क्वायर का अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2xy dy dx प्लस dy dx होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy dx होल स्क्वायर। सो आप देखिए यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर, यहाँ पे एक ही ऑर्डर का डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ठीक है ना। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर इज 1। अब डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर, तो 1 ऑर्डर का हाईएस्ट पावर इधर पावर 1 है, इधर पावर 2 है, इधर पावर 2 है, हाईएस्ट पावर इज 2, सो डिग्री इज 2। तो आप लोग यहाँ से देख के बोल सकते थे कि सर हम लोगों का क्या जरूरत है, यहाँ पे देखिए हाईएस्ट ऑर्डर dy dx 1 है और यहाँ पे dy dx का हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ से ही तो बोल सकता था, क्यों हम लोगों को ये इतना बड़ा एक्सप्रेस करना पड़ा। तो सपोज कीजिए आप लोगों को यही प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा दिया गया है d2x d2y dx2, ठीक है। तो आप ये पूरा प्रॉब्लम क्या हो जाता था, d2y dx2 d2y dx2 d2y dx2 d2y dx2। अब देखो तब हाईएस्ट पावर d2y dx2 का देखना पड़ता, ठीक है। तो आप यहाँ से देख के आप लोग बोलते हैं ऑर्डर क्या है फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो चेंज किया है हम लोगों ने, यहाँ पे 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है,
एक है फर्स्ट ऑर्डर, एक है सेकंड ऑर्डर, सो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर इज 2, सो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। तो आप देखिए हाईएस्ट ऑर्डर का पावर कितना है 1, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से अगर 1 बोलोगे तो आप लोगों का आंसर गलत हो जाएगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर का लास्ट में क्या देगा, आफ्टर एक्सप्रेस इन पोलिनोमियल फॉर्म वी गेट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसका पावर आया है 2, सो इसका डिग्री भी 2। इसीलिए हम लोगों को हमेशा किसी भी प्रॉब्लम हमको दे दिया जाए, हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सप्रेस इन पोलिनोमियल फॉर्म एंड देन वी हैव टू find the highest order derivative and the power of the highest order derivative, which will be degree of the polynomial, and highest order will be the order of the differential equation. Okay, next we'll discuss about the question this: find the order and degree of the differential equation y is equal to px plus root over of s square plus p square plus b square, where p is equal to dy dx। यहाँ पे जो p दिया गया है हम लोगों को, this represent dy dx, this is just like as the previous problem। so if we write this in the form p को dy dx लिख देते हैं, so x dy dx plus root over of s square dy dx whole square plus b square। So now just like previous problem, you take this on the left side and squaring both sides, and then you get y minus x dy dx whole square equal to s square dy dx whole square plus b square। तो y minus x dy dx whole square को अगर आप s square plus 2ab plus b square इस फॉर्मूला यूज करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा y square plus 2xy dy dx plus x square dy dx whole square equal to s square dy dx whole square plus b square। so from here you can find order क्या है, order as highest order derivative is 1 order, so order हो जाएगा 1 and degree भी हो जाएगा आप लोगों का, last after simplification you get degree is 2। okay, next problem देखते हैं। write the sum of the order and degree of the degree of the differential equation ddx of dy dx whole cube is equal to 0। okay, so first of all we have find the derivative of ddx of dy dx whole cube। so dy dx whole cube का derivative पावर सामने 3 सामने एक पावर कम हो जाएगा, so 3 dy dx whole square into ddx of dy dx। तो अगेन dy dx के फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, so ddx of dy dx क्या है, d2y dx2 d2y dx2 is equal to 0। so आप देखिए this in the form of linear polynomial equation, this is in the form of polynomial equation। so यहाँ पे देखिए highest order derivative, यहाँ पे ऑर्डर, इसका ऑर्डर 1 और इसका ऑर्डर 2, तो हाईएस्ट ऑर्डर इज 2। तो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर देखो, ये हाईएस्ट ऑर्डर d2y dx2 इसका पावर क्या है 1। सो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगा। तो सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री, सम ऑफ द order and degree is equal to 2 plus 1 is 3। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट we'll discuss about the solution of a differential equation। solution of a differential equation, कोई भी एक differential equation का solution क्या है। solution means आप लोगों को क्या लगता है, suppose we have an equation
x square minus 4 equal to 0. If we put x equal to 2, then 2 square minus 4 equal to 0, which satisfies the equation. X equal to 2 satisfies the equation, so we can say x equal to 2 is the solution for this equation. Similarly, फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों को नॉर्मल इक्वेशन जो है ये है हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन क्या हो रहा है, दिस इज ए वैल्यू और रियल नंबर, वैल्यू और इसको हम बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है ना। बट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होते हैं फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा व्हिच सेटिस्फाइज द equation or satisfies the differential equation. So a function of independent variable which be a solution of the differential equation or which satisfies the differential equation, then the function is called the solution of the differential equation. Okay, अब देखो general solution of a differential equation, this is very important concept. What is general solution? If the solution of a differential equation of order n, कोई भी एक n ऑर्डर का differential equation का solution contains n arbitrary constants, अगर कोई भी एक differential equation का ऑर्डर n होता है तो n ऑर्डर का differential equation का जो solution है उस solution में अगर n arbitrary constant, हम लोगों को कोई भी c1 इंटीग्रल में c1 c2 लिखते थे ना, c1 क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसा कांस्टेंट आप लोगों को मिलेगा क्या, n अगर जितना ऑर्डर है n ऑर्डर है तो n आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहता है तो उसका सॉल्यूशन में, तो देन दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन. ओके, तो सपोज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस d2y dx2 प्लस y इज y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x. यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज 2, सो जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना होना चाहिए, मस्ट बी 2. सो हियर आर कैपिटल A एंड कैपिटल B आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट. सो y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x एज डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 था एंड यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 है, सो दिस इज ए जनरल सॉल्यूशन. अब देखिए, बट y इज इक्वल टू a cos x प्लस sin x in this equation or y is equal to cos x plus b sin x, in this both equation यहाँ पे arbitrary constant 1 but ये differential equation का order 2 था, so this is not a general solution. Similarly for the second one there is b is also, b is the only arbitrary constant, so for this arbitrary constant 1 but order of the differential equation is 2, hence y is equal to cos x plus b sin x is not a जनरल सॉल्यूशन. सो कोई भी एक सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जितना है जनरल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट इतना होना चाहिए. सपोज वी टेक एन d3y dx3 प्लस x इक्वल टू 0. ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आप लोगों के पास, इसका ऑर्डर कितना है 3, तो द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन, द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन विल बी 3. ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछ सकता है, जे आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो सॉल्यूशन होगा उस जनरल सॉल्यूशन जो होगा उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना होगा, सो आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑर्डर जितना है उतना ही होगा. Next we take some solution. Y is equal to a x plus b cos x is a general solution where a and b are arbitrary constant, is a general solution where a and v are arbitrary constant, जहां पे a and v क्या है, arbitrary constant. So what is the degree of the polynomial whose what is the degree of the differential equation for which this is a solution. तो देखिए यहाँ पे arbitrary constant है 2,
यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 है, ठीक है। सो ये जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 2। ओके, ये जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा आप लोगों का 2। ओके, सो फाइनल बात है कि ऑर्डर जितना है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जितना है उसका जनरल सॉल्यूशन में उतना नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलेगा। और दूसरा टाइप में अगर बोलेंगे किसी जनरल सॉल्यूशन में जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका ऑर्डर इतना ही होगा। ओके, so the last problem of today's class, verify that the function y is equal to e to the power minus 3x is a solution of the differential equation d2y dx2 plus dy dx minus 6y equal to 0। देखो, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों के पास y इज इक्वल टू दिया गया है e टू द पावर minus 3x। Okay, so first we have to find d2y dx2 dy dx and then put the value of d2y dx2 dy dx in the equation. This is suppose equation 1। okay, so यहाँ पे देखो from here dy dx क्या हो जाएगा आप लोगों का, dy dx e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x, so e to the power minus 3x into d dx of minus 3x का minus 3। okay, so अब देखिए d2y dx2 d2y dx2, so d2y dx2 is d dx of dy dx, इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे। सो ये माइनस 3 तो कांस्टेंट बाहर आएगा, e टू द पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस 3x, ठीक है, इंटू माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू माइनस 3 9 e टू द पावर माइनस 3x। ओके, तो आप देखिए फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 पे पुट कर दीजिए आप लोग d2y dx2 का वैल्यू dy dx का वैल्यू, तो क्या मिलेगा, d2y dx का वैल्यू है 9 e टू द पावर माइनस 3x, dy dx का वैल्यू माइनस 3 e टू द पावर माइनस 3x माइनस 6y, तो माइनस 6 y का वैल्यू e टू द पावर माइनस 3x, तो माइनस 6 e टू द पावर माइनस 3x। तो आप देखिए 9 e टू द पावर माइनस 3x माइनस 3 e टू द पावर माइनस 3x माइनस 6 e टू द पावर माइनस 3x, तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज आवर, यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या था RHS, फ्रॉम 1 LHS लिख दो, LHS इक्वल टू फ्रॉम 1 LHS इक्वल टू 0 is equal to RHS. So e to the power minus x, e to the power minus 3x satisfies the differential equation. Hence, e to the power minus 3x is a solution of the differential equation. Okay, I think it is clear to everyone. सो डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास में हम लोगों ने देखा है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है, कब हम किसी डिग्री को अनडिफाइंड कह सकते हैं कि डिग्री नहीं बोल सकते। उसके बाद देखा है सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो बहुत सारा चीजें आज हम लोग क्लास में देखे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से ये क्लास को देखना है, और फिर कोई डाउट हो दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हो। मैं आप लोगों का डाउट, आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। आज का क्लास इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।